नहीं हुआ है। पिछले साल इससे पहले इसका शुरुआत हो चुका था, लेकिन इस साल अभी तक इसका शुरुआत नहीं है। इसके कारण बहुत ज़्यादा टेंशन में है स्टूडेंट की फैमिली और साथ में स्टूडेंट। इसके लोग के क्या होना चाहते हैं स्टूडेंट के, कितना ज़्यादा दिक्कत के सम्मुखीन होना पड़ रहा है उनको, कि इतना लेट सिलेक्शन हो रहा है स्टूडेंट का। इसके विरोध में वो क्या बोलना चाहती है, चलिए देखें। গত বছর 29শে জুন সেশন শুরু হয়ে গিয়েছিল ভর্তি, কিন্তু এই বছর আইনি জটিলতার জন্য বাধ্য করতে বলেছিলেন যে অনেক আগে ইচ্ছা নিতে হবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত হয়নি। তো এই বিষয়ে আপনাদের ছাত্ররা কি বলবেন যে কেন হচ্ছে না বা কি জটিলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আপনাদের? গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটা বিগত এই 3টে টার্মে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা লাটে তুলে দিয়েছে। স্কুল শিক্ষা থেকে শুরু করে কলেজ শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় রীতিমতো ফান্ড কাট হচ্ছে, বাজেট বরাদ্দ, সরকারি ব্যয় বরাদ্দ কমছে, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কমছে, ড্রপ আউটদের ক্লাসে ফেরানোর ক্ষেত্রে সরকার এখনও পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ দেখায়নি। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে আসলে পাঠিয়ে দেওয়ার, তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে এই সরকার। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে 1 মাস পেরিয়ে গেছে, কালকে ব্রাত্য বসু একটা কমেন্ট করেছে যে কোনো সমস্যা নেই, এরকম লেট হতে পারে। আজকে আমরা বলছি এই ব্রাত্য বসু যদি অন্য সরকার ক্ষমতায় থাকতেন, ব্রাত্য বসু যদি উল্টো দিকে থাকতেন, উনি কী করতেন এই বিষয়ে? আজকে তৃণমূল সরকার যা করছে ছাত্রদের সাথে, 1 মাস হয়ে গেল, পরীক্ষার যারা অভিভাবক রয়েছেন, ছাত্রছাত্রী রয়েছেন, তারা খানিকটা চিন্তার মধ্যে রয়েছেন, তাদের উদ্বেগ বাড়ছে, তারা ভর্তি কতটা হতে পারবে, কতটা কবে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে, এই নিয়ে চিন্তাই রয়েছেন গোটা ছাত্র সমাজ। কিন্তু কালকে যা বক্তব্য পেশ করলেন ব্রাত্য বসু, তাতে তার মাথায় কোনো চিন্তার ভাঁজ দেখা গেল না। এই ঘটনা আসলে দীর্ঘকাল ধরে চলছে। আমরা বলছি ইতিমধ্যেই ছাত্রদের ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে, কলেজে কলেজে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করতে হবে। কলকাতার মধ্যে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে, যে কলেজগুলো রয়েছে, সেই কলেজগুলোর 50% ভর্তি সিট শূন্য থেকে যায়, শূন্য পদ ফাঁকা থেকে যায়। আগের বছরও আমরা দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রে কিংবা কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে এই শূন্য পদ ফাঁকা থেকে গেছে। সরকার থেকে কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি, বাড়তি উদ্যোগ দেখা যায়নি। এইবারেও তাই হতে চলেছে। আমরা বলছি প্রত্যেকটা সিট ভর্তি হতে হবে, প্রত্যেক ছাত্রের ভর্তির অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে, এবং এই যে 1 মাস ধরে ডিলে হলো এই প্রক্রিয়া, এই ডিলে হওয়া চলাকালীন যা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তার ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করবে। সরকারের গাফিলতি, এই সরকারের গাফিলতি তো 2011 সালের পর থেকে আমরা দেখছি। 2011 সালের পর থেকে শিক্ষা ব্যবস্থায় যা গাফিলতি দেখিয়েছে এই সরকার। শিক্ষামন্ত্রী, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জেলে ছিলেন, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ওই জেলের সঙ্গে একসাথে নিয়ে চলে গেছেন। নতুন সেশন যে ছাত্রছাত্রীরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, তো আপনার মতে এটা কীভাবে ঠিক হবে? এই যে ভর্তি প্রক্রিয়া, এই ভর্তি প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করতে হবে, এবং কলেজে কলেজে ওই কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের দাদারা যে কাটমানি সিন্ডিকেট চালায়, এই কাটমানির সিন্ডিকেট এইবার বন্ধ করতে হবে। কাটমানির সিন্ডিকেট আর চালানো যাবে না। স্বচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়ার দাবি করছি আমরা। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पिछले साल की तुलना में इस साल की भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि पिछले साल 19 जून को हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और बात तो बसु ने बोला कि ये आईनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो इस वजह से स्टूडेंट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट तो बहुत गहरी पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो साल गुजर गया है, एडमिशन हुआ है वहाँ, उसमें तो बहुत सारा मतलब जून जुलाई तक ख़त्म हो जाता था, शुरू हो जाता था। लेकिन इस साल बहुत, मैं अगर लॉ कैंपस की बोलूँ, लॉ के बारे में, कि अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का अगले साल का जो एडमिशन हुआ था उसका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था अभी तक। नया साल आ गया, अभी नया एंट्रेंस होने का, नया फॉर्म फिलअप का टाइम आ गया, लेकिन पिछले साल का जो एंट्रेंस हुआ था उसका एडमिशन होकर अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी नहीं दिया यूनिवर्सिटी। इससे फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगस्त से ही सेकेंड सेम का एग्ज़ाम शुरू होगा। अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया अभी तक, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करेगा। उसके बाद तो अभी तक बार काउंसिलिंग का जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट, उसका एफिलिएशन भी कैंसिल हो गया है। अभी तक एग्ज़ाम मतलब बोला है कि नया साल का एडमिशन रुक जाएगा, क्योंकि बार काउंसिल बोल दिया कि एफिलिएशन कैंसिलेशन हो गया। अभी तक कुछ नहीं बोला, अपडेट नहीं दिया। बहुत बार बोला है, डेपुटेशन दिया है, बहुत बोला है वीसी मैम को, डीन को, लॉ का डीन को, लेकिन अभी तक कोई
मतलब कोई सुराग नहीं निकला। तो इस बारे में बोलूँगा कि जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोटिफिकेशन निकाले। स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। यही हम लोगों का मतलब आवेदन है यूनिवर्सिटी के पास। लेकिन और शिक्षा मंत्री भारतवर्ष ने बोला था कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इसमें गाफिलत है किसका, आपको क्या लगता है? गाफिलत सबका है, राज्य सरकार के शुरू करके यूनिवर्सिटी में जो टीएमसीपी है वो लोग तो कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही फ़ायदा ऐसे बैठा रहता है। यूनियन का फीस लेता है लेकिन कुछ काम नहीं करता है, ऐसे ही दखल करके बैठा हुआ है। यूनिवर्सिटी का जो कर्तृपक्ष है अभी तक वो लोग कुछ भी नहीं, मतलब कोऑपरेट भी नहीं करते स्टूडेंट लोगों के साथ। बोल रहा है कि क्या करूँ, स्टूडेंट लोग कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। तो स्टूडेंट लोग बहुत प्रॉब्लम में है। इन लोग ये सॉल्व कैसे होगा? यूनिवर्सिटी को जल्दी इस बारे में कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा उन लोगों को, अभी तक नहीं कर रहा है। नए स्टूडेंट को जो पेरेंट्स है वो तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में हाँ, पड़ चुका है। बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी तक तो सिलेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, सिलेक्शन क्या बोलूँ मैं। बोला ना, पिछले साल का एडमिशन हुआ था, अभी तक उन लोगों का सेकेंड सेम का एग्ज़ाम होने का डेट देता भी, अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं हुआ। हम खुद लॉ का स्टूडेंट है, हम 4th ईयर में पढ़ते हैं अभी। मतलब जुलाई में हम लोगों का 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन देगा, अभी तक नहीं दिया। सेकेंड सेम का भी ऐसे ही होता, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी तक। उन लोगों का बहुत दिक्कत हो रहा है, कैसे सॉल्व होगा यूनिवर्सिटी बोलेगा, कुछ नहीं बता रहा है अभी तक। दूसरे डिपार्टमेंट जो है उन डिपार्टमेंट में भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। कर्तृपक्ष को बहुत मतलब क्या बोलूँ, माने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी बच्चा का नहीं था। जल्दी से मेंस में मतलब मोस्टली जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें जल्दी से नोटिफिकेशन निकाले, नया साल का भर्ती का प्रक्रिया निकाले। और जिस डिपार्टमेंट अभी तक मतलब कोई डिपार्टमेंट में अभी तक नहीं हुआ है शुरू एडमिशन, तो वो एडमिशन जल्दी से शुरू करिए, यही हमारा निवेदन है। आपका नेम? मैं मासूम मियाँ हूँ, मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का लॉ डिपार्टमेंट के 4th ईयर में हूँ। कॉलेज के स्टूडेंट का एक ही चीज़ बोलना है कि ये सभी गाफिलती है शिक्षा मंत्री भारतवर्ष या फिर कॉलेज काउंसिल, जिनकी गाफिलती के कारण अभी तक स्टूडेंट काउंसिल की भर्ती नहीं हुआ है। अभी तक कोई स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया है। इसके अलावा जो स्टूडेंट अभी भी पढ़ रहे हैं उन लोगों का भी एग्जाम में दिक्कत हो रहा है। अभी भी उन लोगों को एग्जाम के शेड्यूल भी नहीं मिला है, अभी तक उन लोगों को दिक्कत के सम्मुखीन हो रहा है। और इसका समाधान चाहते हो कॉलेज से और सारी शिक्षा व्यवस्था से, और मुख्यमंत्री से भी और शिक्षा मंत्री भारतवर्ष से भी। कैमरा में सुबोधित के साथ मैं आशा, न्यूज़ से नहीं कोलकाता। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI।